اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جس نے دن بنائے اور جس نے راتیں بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نماز فجر کے لیے اٹھنے کی کچھ تدبیریں بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو نماز فجر کی تھوڑی سی شارٹ سی فضیلت بھی بیان کروں گا۔ تو کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو غور سے سنیے اور اس پر عمل کیجئے گا، کیونکہ نماز فجر ہمارے لیے بہت اہم ہے، بلکہ ہر نماز ہی ہم مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ تو یہ بات سن کے مولا علی شیر خدا نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق بن کے اور تمہارے ہاتھوں میں ہتھ کڑی بن کے اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت فرمان انہوں نے بیان کیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ نہیں پاتا، یا میں اٹھ نہیں سکا، یا میں نماز نہیں پڑھتا، تو وہ سن لے مولا علی شیر خدا کا فرمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اور شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی اور رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ تو اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کریں، یہ سنت ہے، اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ اور کوشش کیا کریں میرے سارے بھائی بہنیں کہ رات کا کھانا جلدی کھائیں اور پیٹ بھر کے نہ کھائیں، اور رات کو پانی نہ پیئیں، اور اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پیئیں، اور کوشش کریں کہ عشاء کی نماز پڑھیں، جلدی سے کھانا کھائیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی سنت سمجھ کر ضرور کیجیے اور جلدی سو جائیں، اور رات کو سونے کے مسنون اعمال کر کے سوئیں۔ اگر ہو سکے تو گھر میں کوئی ایسے بزرگ ہوں جو صبح لازمی اٹھتے ہوں تو ان سے کہہ کے سوئیں کہ مجھے صبح اٹھا دیا کریں۔ اور ایک سب سے بڑا اور سب سے ایزی میں آپ کو بیان کرتا ہوں نماز فجر میں اٹھنے کا طریقہ، کہ الارم لگا کے سوئیں، اور الارم اپنی چارپائی یا بیڈ سے اتنا دور رکھیں کہ آپ کو اسے بند کرنے کے لیے اٹھنا پڑے۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے آپ اٹھیں گے اور الارم آف کریں گے تو ضرور آپ کی نماز فجر بھی پڑھی جائے گی۔ اور جیسے ہی آنکھ کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملائیں، یہ عمل موافق سنت ہے۔ اور جب رات کو سوئیں تو پکی نیت کر کے سوئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں کہ اللہ میں نماز فجر کی نیت کر کے سو رہا ہوں تو میری آنکھ لازمی کھلے۔ تو یہ وہ چند ترکیبیں ہیں جن کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور اٹھیں گے، اور اگر ایک بار اٹھنا شروع ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز فجر کبھی بھی قضا نہیں ہوگی۔ اور ایک آپ کی جب بھی آنکھ کھلے، اگر خدا نخواستہ فجر میں نہ کھلے تو جب بھی آنکھ کھلے تو نماز فوری چاہے قضا ہی پڑھ لیا کریں، اور باقی بھی نمازیں پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو نمازوں کی عادت ہو جائے گی۔ اور بہت سارے میرے بھائی بہنیں یقیناً ایسے ہوں گے جن کو الارم کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی رحمت سے ان کو بیدار کر دیتا ہے۔ ہر نماز کی بہت اہمیت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نماز فجر کی خاص اہمیت ہے، اور فجر کے فرض تو فرض ہی ہے،
लेकिन सुन्नतों की भी बहुत बड़ी अहमियत है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी नफल की अदायगी के लिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, सुन्नतें भी असल में नफली इबादत है। एक फर्ज होती है इबादत और एक नफली इबादत होती है, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ अदा की तो वो सुन्नतें होंगी, और बाकी जो कभी कभार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की तो वो नफली इबादत है। तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि किसी भी नफल की अदायगी के लिए इतनी जल्दी करते हुए नहीं देखा जितनी जल्दी आप नमाज फजर से पहले 2 रकतों के लिए करते थे। जल्दी पढ़ते नहीं थे, यानी उसकी अदायगी के लिए आप जरूर जल्दी करते थे। और अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ही रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलूहे फजर के वक्त 2 रकत नमाज पढ़ने के बारे में फरमाया, इनको पढ़ना मेरे नजदीक सारी दुनिया से ज्यादा महबूब है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जो कोई इशा और फजर की नमाजों में आ सकता है तो उस पर लाजिम है कि वो आए, अगरचे उसे घिसट के ही क्यों ना आना पड़े, यानी घुटनों के पल या पीठ के पल घिसट घिसट के ही क्यों ना आना पड़े तो भी आए, लेकिन आए जरूर। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह का बंदा फजर की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। ये हर भाई हर बहन के लिए है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी बस वो अल्लाह के जिम्मे में है और वो अल्लाह की हिफाजत में है, वो अल्लाह के जिम्मे हो गया। बस अल्लाह तुमसे अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज का मुतालबा ना करे तो इसका क्या मतलब, यानी जो अल्लाह के जिम्मे है उस पर कोई जुल्म ना करे और जुल्म करके अल्लाह के सामने जवाब देना हो, इसलिए कि जिससे अल्लाह पूछेगा, अल्लाह मुतालबा करेगा तो अल्लाह ताला उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा और लेकर मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इससे क्या बात पता चलती है कि जो शख्स फजर की नमाज की हिफाजत करता है, वो चाहे कोई औरत हो चाहे कोई मर्द हो, तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है और अल्लाह ताला की हिफाजत में हो जाता है, और किसी को हक नहीं कि वो उस पर जुल्म और ज्यादती करे। और जो उस शख्स पर ज्यादती करेगा जो फजर की नमाज पढ़ता है तो वो दरअसल उस जिम्मे में खयानत कर रहा है जिसको अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे में ले लिया। और फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पकड़ेगा, यानी फजर पढ़ने वाले की इज्जत और एहतराम लाजिम है क्योंकि मोमिन ही इसकी पाबंदी करते हैं। उसकी वजह के बहुत सारे लोगों के लिए फजर की नमाज बहुत भारी होती है, एक फजर की और एक असर की नमाज, क्योंकि फजर में उठना मुश्किल होता है और असर की नमाज जो है वो कारोबारी तौर पर बहुत भारी होती है क्योंकि उस वक्त कारोबार का जोर होता है और बहुत सारे लोगों की अक्सर नमाजें कज़ा हो जाती है और बहुत सारे मेरे भाई बहन रात को देर से सोते हैं, इसलिए वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। तो देखिए कि जो ऐसा करता है उनकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मे नहीं है। तो इसलिए बहुत ही फिक्र करनी चाहिए नमाज फजर की, लेकिन ये नहीं कि बाकी नमाजें हम खुदा न खासा कज़ा कर ले, बाकी भी नहीं, नमाज फजर लाजमी पढ़े और उसके बाद बाकी नमाजों की भी पाबंदी जरूर करें और वक्त पर करनी चाहिए। और फजर पढ़ने वाला शाम तक अल्लाह ताला की हिफाजत में होता है। और इसमें एक वाकया भी आता है अहादीस की किताबों में, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते ये हज्जाज के पास बैठे हुए थे। और हज्जाज के बारे में तो हमारी तारीख गवाह है कि वो बहुत जालिम शख्स था तारीख का। तो हज्जाज ने उनसे कहा, उठो और फलां बंदे की गर्दन मार दो।
तो सालम ने तलवार उठाई, यानी इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने तलवार उठाई और उस आदमी को पकड़ा और महल के दरवाजे की तरफ चल पड़े। तो उनके वालिद इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको देख लिया जब वो उस आदमी को बाहर लेकर जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या वाकई ये ऐसा करने जा रहा है? उन्होंने 2-3 बार ये बात दोहराई और फिर बाहर लाकर सालम ने उस शख्स से पूछा, क्या तुमने फजर की नमाज पढ़ी है? यानी जिस बंदे को कत्ल करने का हुक्म था उससे पूछ रहे हैं कि तुमने फजर की नमाज पढ़ी थी? तो उस शख्स ने कहा, जी मैंने पढ़ी है। तो हजरत सालम कहने लगे, तुम जिस रास्ते से जाना चाहते हो चले जाओ, और उस शख्स को रवाना कर दिया और वापस आए हज्जाज के पास और आकर तलवार फेंक दी। तो हज्जाज ने पूछा, क्या तुमने उस शख्स की गर्दन उड़ा दी? तो कहने लगे, नहीं। तो हज्जाज ने पूछा, क्यों? तो सालम ने जवाब दिया, यानी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते ने जवाब दिया, मैंने अपने वालिद को ये कहते हुए सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है यहां तक कि शाम हो जाए। तो उनके वालिद ने उनसे कहा कि समझदार रहो, मैंने तुम्हारा नाम इसीलिए सालिम रखा कि तुम सलामत रहो, यानी अल्लाह के जिम्मे के अंदर खयानत ना करो। तो इस एक वाक़े को बयान करने का मकसद ये था कि जो बंदा अल्लाह के जिम्मे में आता है तो उससे बहुत बड़ी मुसीबतें और परेशानियां टल जाती हैं। एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि बंदा अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा सजदे की हालत में होता है। तो ये देखिए, सारी नमाजें जरूर पढ़नी चाहिए। बंदे का अल्लाह के साथ राब्ता रहता है, हमारे ताल्लुक उस अजीम हस्ती के साथ है जिसने हमें पैदा फरमाया है। और दूसरा एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह फजर के वक्त मेरी उम्मत के लिए बरकत अता फरमा। तो जो अल्लाह का बंदे, अल्लाह के बंदे सुबह फजर के वक्त उठे, नमाज पढ़े, अल्लाह को याद करे और उसके बाद जितना हो सके कुरान पाक जरूर पढ़िएगा और उसके बाद अपने दिन का आगाज कीजिए। तो यकीन कीजिए कि सारा दिन आपका हशाश बशाश भी रहेगा और आपकी तबीयत भी बहुत अच्छी रहेगी और आप बहुत सारी मुश्किलातों परेशानियों से भी बचेंगे। और नमाजों की बरकत की वजह से अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके माल में, आपकी औलाद में बरकतें भी अता करेगा। और इसके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नमाज फजर और नमाज असर, जो ये 2 नमाजें पढ़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और एक और रवायत में ये अल्फाज हमें मिलते हैं जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि वो आदमी हरगज़ दोज़ख में नहीं जाएगा जिसने सूरज निकलने से पहले और सूरज के गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ी, यानी फजर और असर की नमाज। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, इन नमाजों में सुस्ती मत करो अगर अल्लाह का दीदार करना चाहते हो। और इस तरह जैसे तुम 14वीं के चांद को देखते हो और तुम्हें कोई धक्कम पेल से भी वास्ता नहीं पड़ेगा, यानी जो अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी इन नमाजों की हिफाजत करेगा तो अल्लाह ताला की ज़ियारत जरूर करेगा अल्लाह ताला की रहमत से। तो मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, ये चंद मैंने आपको तरकीबें भी बयान की और मैंने आपको नमाज फजर और दूसरी नमाजों की थोड़ी सी फजीलत भी बयान की है। और एक आखिरी बात याद रखिएगा, जो अल्लाह का बंदे, अल्लाह की बंदी नमाज नहीं पढ़े, कुरान पाक नहीं पढ़े और नेकी के काम ना करे तो फिर मुसीबतें और परेशानियां उनके घरों में डेरे डाल लेती है। और जिस घर में अल्लाह जैसी अजीम हस्ती को सजदा किया जा रहा हो और जिस घर में अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता तो वहां पर हमेशा अल्लाह ताला की रहमतें बरसती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बनाए, आमीन सुम आमीन। और हम सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और हमसे हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर कर दे, आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा।
اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کی زندگی بدل دیں اور اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔